Hello students, a very good morning to all of you. Student, here is your ma'am Mrs. Geeta Satyavali, and today we will discuss the back exercise solution of our chapter 2, that is subject and predicate. So first of all, we take our question A, that is take the correct option. First sentence is I broke the zipper on my pack bag. Here broke predicate, zipper predicate, backpack predicate are the options below. So broke is the verb here, the zipper is the direct object, and on my pack bag. Here pack bag is indirect object. So all of three comes in the category of predicate and I is the subject here. Now come to our second question. The teacher handed out a syllabus the first day of class. Teacher, subject, syllabus, subject, class, subject are the option below. Here teacher is subject because it is doing the main work of handling the syllabus. That's why it is taken as subject and the first option is the correct answer. Most colleges offer several computer science courses. Here most colleges, by mistake it is written here school predicate, but here most colleges predicate it should become. But most colleges is the subject here, offer is verb, several computer science courses is the object here. Answer of all these things you get on the right hand side which is written here. सो स्टूडेंट, आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में अपने चैप्टर 2 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन ए को, टेक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट सेंटेंस है हमारा आई ब्रोक द जिपर ऑन माई पैक बैग. इसमें ब्रोक है आपका प्रेडिकेट, जिपर है प्रेडिकेट, पैक बैग है प्रेडिकेट, ये ऑप्शंस दिए गए. तो आई यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, ब्रोक आपका यहाँ पे वर्ब है, द जिपर जो कि मेन चीज़ टूटी है वो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पैक बैक यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो ये सभी चीज़ें जो है आपकी प्रेडिकेट में आएंगी क्योंकि प्रेडिकेट में आपका वर्ब भी आता है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस आपका इसमें कहीं पर पजेसिव नाउन भी आ जाता है और कॉम्प्लीमेंट भी आता है. तो इस बेसिस पे हम तीनों को टिक करेंगे. द टीचर हैंडल आउट ए सिलेबस द फर्स्ट डे ऑफ क्लास. ऑप्शंस दिए गए हैं टीचर सब्जेक्ट, सिलेबस सब्जेक्ट, क्लास सब्जेक्ट. तो टीचर सब्जेक्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है यहाँ क्योंकि टीचर मेन काम कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट सिलेबस को हैंडल करने का काम टीचर के द्वारा हुआ है, इसीलिए इसे सब्जेक्ट के रूप में लिया जाएगा. मोस्ट कॉलेजेस ऑफर सेवरल कंप्यूटर साइंस कोर्सेज. यहाँ पर मोस्ट कॉलेजेस जो है वो बाय मिस्टेक नीचे स्कूल प्रेडिकेट लिखा है मगर स्कूल की जगह पे मोस्ट कॉलेजेस आएगा और ये आपका सब्जेक्ट है. ऑफर यहाँ पर आपकी वर्ब है एंड सेवरल कंप्यूटर साइंस कोर्सेज यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट के रूप में है. इन सभी के आंसर आपको राइट हैंड साइड पर लिखे हुए मिल जाएंगे, आप यहाँ से चेक करके कॉपी में कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. So sentence, look at our fourth sentence. Swimming is good for health. Option are swimming subject, is subject, skill subject. Here swimming subject is the correct option because the whole sentence talk about swimming. Fifth sentence, everyone recognize the name Narendra Modi. Here everyone subject, name subject, Narendra Modi subject. Here everyone subject is taken as correct because it is the subject of the sentence because the whole subject talks about everyone. Recognize is here verb and the name Narendra Modi is taken as the object. Now, sixth, a schedule helps students with time management. So here a schedule is taken as the subject, help is verb and the students are the indirect object and time management is the direct object. So that's why we take help and management as the predicate. स्टूडेंट, अब हम अपने चौथे सेंटेंस को देखेंगे. स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ. ऑप्शन है स्विमिंग सब्जेक्ट, इज सब्जेक्ट, स्किल सब्जेक्ट. तो स्विमिंग सब्जेक्ट करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि पूरा सेंटेंस स्विमिंग की ही बात करता है. एवरीवन रिकॉग्नाइज द नेम नरेंद्र मोदी.
एवरीवन यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, रिकॉग्नाइज वर्ब है, द नेम नरेंद्र मोदी ऑब्जेक्ट है। तो इस बेसिस पे एवरीवन सब्जेक्ट वाला फर्स्ट ऑप्शन सही है। ए शेड्यूल हेल्प्स द स्टूडेंट विथ टाइम मैनेजमेंट। शेड्यूल जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे लिया जाएगा क्योंकि इसी की बात पूरे सेंटेंस में हो रही है। हेल्प यहाँ पर आपका वर्ब है, द स्टूडेंट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टाइम मैनेजमेंट आपका मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, या हम जिसे कहेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है। तो हम दो चीज़ों पे टिक लगाएंगे, हेल्प और मैनेजमेंट पर। इन सभी के आंसर आपको थर्ड स्लाइड पे माय सॉल्यूशंस के नीचे मिल जाएंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। So student, at the top you can see my solution and the answer of 4, 5 and 6. Now move forward to our question 2. Encircle the subject and underline the predicate. Here encircle the subject means to put a circle around the subject. But here I use a green color to highlight the subject here, and the rest part of predicate is just underlined by me, and this is written on your right hand side also, so you can get it understand very easily. So look at our first sentence. A good teacher helps the student. Here a good teacher is subject because she is doing the main work here, and helps the student is taken as the predicate. Barking dogs seldom bite. Barking dogs is the subject here. Seldom bite is predicate here. That's because the whole sentence talk about barking dogs. We all are Indians. Here we all are taken as the subject and are Indians as the object, as the predicate of the sentence. Divya and Rohan ran very fast. Here Divya and Rohan together taken as subject because both are running. So work is done by both. That's why both are taken as subject. Ran very fast is taken as predicate. His grandmother was walking with a stick. His grandmother is subject here because the whole sentence talk about his grandmother was walking with a stick is taken as predicate. My youngest daughter bought a computer. Here the work of buying a computer is done by youngest daughter, so it is taken as the subject here, and the rest part is taken as predicate here. सो स्टूडेंट, जैसे कि अभी हमने आपको पहले ही बताया था कि माय सॉल्यूशन, और नीचे मैंने आपको जो सेंटेंस थे क्वेश्चन ए के 4, 5, 6 उनके आंसर्स को लिख दिया है। आप उसके अकॉर्डिंग उन्हें टिक करके अपनी कॉपी में कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 में कहा गया है कि एनसर्कल करें सब्जेक्ट को और अंडरलाइन करें प्रेडिकेट के, मगर यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है ताकि मैं सब्जेक्ट को हाईलाइट कर सकूँ और ये समझने में ईजी हो, और प्रेडिकेट को जस्ट अंडरलाइन ही किया गया है। आप कॉपी में इसे एनसर्कल ही करें, यानी कि इस पर गोला लगाएंगे चारों ओर, जो कि ग्रीन कलर से यहाँ पर वर्ड्स लिखे गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ए गुड टीचर हेल्प्स द स्टूडेंट। हेयर ए गुड टीचर को हम सब्जेक्ट मानेंगे क्योंकि वो मेन काम कर रही है सब्जेक्ट में, और हेल्प्स द स्टूडेंट प्रेडिकेट है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि इसी की बात पूरे सेंटेंस में हो रही है, और सेल्डम बाइट को हम यहाँ पे प्रेडिकेट के रूप में लेंगे। वी ऑल आर इंडियंस, तो यहाँ वी ऑल की बात हो रही है यानी कि हम सब, तो इसे हम सब्जेक्ट के रूप में लेंगे। आर इंडियंस आपका प्रेडिकेट है। दिव्या एंड रोहन, दिव्या एंड रोहन को हम यहाँ साथ में सब्जेक्ट इसलिए ले रहे क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में दोनों की ही बात कही है कि वो तेज़ दौड़े, तो रैन वेरी फास्ट यहाँ पे प्रेडिकेट होगा, एंड दिव्या एंड रोहन दोनों ही को सब्जेक्ट के रूप में लिया जाएगा। हिज ग्रैंड मदर वॉज वॉकिंग विद ए स्टिक। हिज ग्रैंड मदर को यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे लिया जाएगा क्योंकि सेंटेंस में उन्हीं की बात हो रही है, एंड वॉज वॉकिंग विद ए स्टिक प्रेडिकेट है। माई यंगेस्ट डॉटर बॉट ए कंप्यूटर। माई यंगेस्ट डॉटर को यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे लिया जाएगा। बॉट ए कंप्यूटर को यहाँ पर हम जो है प्रेडिकेट के रूप पे लेंगे क्योंकि यह काम होने को बता रहा है कि क्या काम हुआ है, और माई यंगेस्ट डॉटर वो है जिसने इस मेन काम को किया है। सो स्टूडेंट, नाउ मूव फॉरवर्ड।
In seventh sentence, we shall spend money for shopping. We is here the subject. That's because we is doing the main work of spending money. And the rest part, shall spend money for shopping, is taken as predicate. At number 8, to achieve the goal is her aim. So to achieve the goals is taken as subject because about it the whole sentence is talking about. Is her aim is taken as predicate. We can also write this sentence as her aim is to achieve the goals, but then her aim is taken as subject and is to achieve the goals is taken as predicate. The paper boat will have floated on the rainwater. So the sentence talk about paper boat. So it is assumed as the subject of the sentence and the rest part is taken as the predicate. In our 10th sentence, do your work again and again. It is an imperative sentence where subject is usually omitted because we assume you as here subject. That's why I underline the whole sentence and it is taken as predicate. You can write in bracket you equal to subject. Example, imperative sentences. So student, हमारे 7th पार्ट में यानी कि 7th सेंटेंस में वी शैल स्पेंड मनी फॉर शॉपिंग, यहाँ वी मेन काम कर रहा है पैसे खर्च करने का, तो इसे सब्जेक्ट के तौर पे लिया जाएगा और बाकी चीज़ जो है वो प्रेडिकेट के रूप में ली गई है और उसे अंडरलाइन किया गया. टू अचीव द गोल इज़ हर एम. टू अचीव द गोल्स की बात इस पूरे सेंटेंस में हो रही है तो वो आपका सब्जेक्ट है. इज़ हर एम यहाँ आपका प्रेडिकेट है. हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हर एम इज़ टू अचीव द गोल्स. उस केस में हर एम आपका सब्जेक्ट होगा और इज़ टू अचीव द गोल्स को हम यहाँ प्रेडिकेट के रूप में लेंगे. द पेपर बोट विल हैव फ्लोटेड ऑन द रेन वाटर. तो यहाँ पर हम पेपर बोट की बात कर रहे हैं इसलिए पेपर बोट यहाँ सब्जेक्ट है और बाकी का पोर्शन विल हैव फ्लोटेड ऑन द रेन वाटर प्रेडिकेट के रूप में लिया जाएगा. डू योर वर्क अगेन एंड अगेन, ये एक तरीके का आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है. ये आपका एक सजेशन भी हो सकता है और अगर आपको किसी टीचर ने ये कहा है तो उस केस में ये एक ऑर्डर या कमांड के रूप में भी लिया जाएगा. तो इन केसेस में हम सब्जेक्ट को नहीं यूज़ करते क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ यूज के रूप में माना जाता है. इसलिए सारे ही सेंटेंस को मैंने अंडरलाइन किया है और ये प्रेडिकेट के रूप में लिया जाएगा. आप ब्रैकेट में यू इक्वल टू सब्जेक्ट लिख सकते हैं. ओमिटेड का मतलब है जिसे हम लिखते नहीं है या जिसे वहाँ से हटाया गया है. एंड एक्सरसाइज, इम्पेरेटिव एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पर है एग्जाम्पल. इम्पेरेटिव सेंटेंस का ये एक एग्जाम्पल है इसलिए यू को यहाँ से हटाया गया. So student, hope you like this session. Thank you and have a great day.